Good morning, students. Let's start the resonance structure. Next bond parameter. Okay, we have discussed about the bond length, bond order, bond energy. Okay, etc. Bond. Okay, now resonance structure. It has been observed that single Lewis structure certain compound cannot be satisfactory explanation of all property of the कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड की लेविस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, लेविस स्ट्रक्चर, सिंगल लेविस स्ट्रक्चर उसकी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहता है. ओके, देयर फॉर एग्जांपल ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है? ओजोन इज द एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन. ओजोन इज द एलोट्रॉफ ऑफ ऑक्सीजन. ओजोन मॉलिक्यूल में क्या होता है? ऑक्सीजन एक सिंगल डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है. ओके डियर, इस डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 121 pm पिकोमीटर, और ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसका होता है 148 पिकोमीटर. ओके, ये देख लेविस स्ट्रक्चर में शो किया गया, बट एक्सपेरिमेंटली क्या डिटरमाइन हुआ? दैट कि ये बोथ बॉन्ड लेंथ आर इक्विवेलेंट, और दैट इज intermediate between 148 and 120 means the actual bond length is intermediate between single and double bond between oxygen and oxygen atom. Therefore the Lewis structure is not a actual structure of the ozone molecule. Okay dear, now therefore the concept of resonance was introduced for solving the problem, to explain the accurate structure of ozone like molecules as benzene, CO2, H2SO4, nitric acid, etc. Lot of the compound have the resonance structure. So now resonance, what is the resonance? The phenomena in which two or more structure can be written for the true structure of the molecule, but none of them can explain the actual structure of the molecule is called resonance, and the structures are called resonating structure or canonical structure. ऐसी फिनोमिना जिसमें इस एक ही मॉलिक्यूल की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की जाती हैं उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी को या एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, बट उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होती है, उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है. द फिनोमिना इज नोन एज द रेजोनेंस. और ये जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की गई हैं, द स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो. ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है. सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू लेविस स्ट्रक्चर. सी ओ सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ. ओके, द बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 148 और डबल बॉन्ड की क्या है 121, और ऐसे रिपीट हो रही है. बट द एक्चुअल स्ट्रक्चर विच इज डिटरमाइंड बाई द एक्सपेरिमेंट या वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इज दैट विच हैविंग द बॉन्ड लेंथ 128 पिको. Okay dear, the third structure represent the structure of ozone molecule more accurately. The structure is called resonance hybrid. जो structure more accurate होती है that is known as the resonance hybrid, but it is the hypothetically not actual. ये actual में नहीं रहता है. Okay dear, then the resonance hybrid is the actual structure of all possible structures that can be written for the molecule without changing relative positions of its atom and without violating the octet rule. कि ना octet rule को ये डिस्टर्ब करती है ना पोजीशन को चेंज करती है एटम्स के. ओके डियर, जो पोजीशन की एटम लेविस स्ट्रक्चर में रहती है मॉलिक्यूल के अंदर वही हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड में रहती है.
Okay dear? Now, characteristics of the resonance hybrid. It is more stable, has the less energy than the other resonating structure. The energy difference between the hybrid and the most stable canonical structure is known as the resonance energy. Resonance energy क्या है? See the students, ozone molecule has the three structure: first, second and थर्ड. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो इन फर्स्ट में से ये कहलाती हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर. ये क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो इन दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर से जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगी, इसकी एनर्जी और इस हाइब्रिड की एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा एनर्जी का, दैट इज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी. ओके. Higher the resonance energy, greater is the stability of a molecule. Okay. Now next point, the bond length in the hybrid are different from the contributing structure. Okay. Necessary condition for the are as all the resonating structure of the molecule must have the same arrangement of atomic nuclei. अब पहले भी बता चुका हूँ, कोई अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सेम अरेंजमेंट रहता है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जो बॉन्डिंग हो या लोन पेयर हो, जैसे भी हो, सारी स्ट्रक्चर्स में लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही सेम रहते हैं. The energy of the resonating structure nearly same or about same. Okay. Resonating structure must be planar. कैसा होना चाहिए? Must be planar होना चाहिए. Contribution of the resonating structure. Contribution क्या होता है मॉलिक्यूल के टुवर्ड्स में? तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर और डाइपोल. पोलर स्ट्रक्चर मीन्स जैसे पोल्स बन जाते हैं. सपोज दैट HCl. तो HCl पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होने का कारण क्लोरीन की इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ. देयरफॉर हाइड्रोजन बियर्स ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. ओके. तो ये टू पोल्स फॉर्म हो गए, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल्स. देयरफॉर द मॉलिक्यूल इज पोलर. ये कैसा हो गया? पोलर. नॉन पोलर मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो H दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. ना तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, ना इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे. किसी तरफ नहीं जाए, कोई पोल्स नहीं बनेंगे. देयरफॉर दे आर नोन एज द नॉन पोलर कंपाउंड. तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द पोलर स्ट्रक्चर. ओके डियर. स्टेबिलिटी डिक्रीज ऑन इंक्रीज द चार्ज. इतना बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी. ओके. इफ all structure have the formal charge, the most stable structure is that which have positive and negative charges reside on the most electronegative and most electropositive atoms respectively. अगर जैसे चार्ज स्पीसीज है, फॉर्मल चार्ज रखा है, तो फॉर्मल चार्ज में पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाइड्रोजन पे होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्लोरीन पे होनी चाहिए. अगर ऐसी स्ट्रक्चर है तो ये स्टेबल होगी. अगर इसके अपोजिट है तो वो स्टेबल नहीं होगी. ओके. ये बोल रही. नेक्स्ट पॉइंट है द मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कि जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. ओके डियर. नाउ इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होता है मॉलिक्यूल पर? रेजोनेंस का क्या इफेक्ट आता है? तो स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी वो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के प्रोपोर्शनल होगी. नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगी. रेजोनेंस एंड द बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स. जैसे ओजोन मॉलिक्यूल देख लें तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑक्सीजन एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी थी? एक तो ये हो गई, दूसरी ये थी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ऑक्सीजन एटम 3. देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द ओजोन इक्वल टू 1 + 2 अपॉन 2, 3/2 to 1.5. Okay dear. Now resonating structure of carbonate. The single Lewis structure of carbonate ion
based on based on the presence of two single bond and one double bond between carbon and ऑक्सीजन एटम। देखिए कार्बन की जो कार्बोनेट की जो स्ट्रक्चर होती है ये सिंगल बॉन्ड, और ये क्या होती है, टू सिंगल बॉन्ड होते हैं, वन डबल बॉन्ड होता है। बट एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशंस के द्वारा अपीयर हुआ है कि all the three bonds between the carbon or oxygen atoms are identical, therefore the structure was wrong. Okay, now okay, so therefore the resonating structure of carbonate ion are as, ओके जिसमें नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है तीनों ऑक्सीजन एटम पर, और डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हो रहा है तीनों ऑक्सीजन एटम पर। देयरफॉर द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसमें से ना तो कोई ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ना ये है, ना ये है, इन तीनों को मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा जो फोर्थ स्ट्रक्चर होगी। ओके डियर, वो कहलाएगी इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज जो कैसी होगी, और वो होगी हाइपोथेटिकल। ओके डियर, तो ये दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, रेजोनेंस हाइब्रिड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होती है जो मोस्ट स्टेबल होती है ना। बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट आयन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, टोटल बॉन्ड 4 हैं, 2 यहाँ है, ओके 2 ये हैं, 1 ये है और 1 ये है। देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर 2 + 1 2 + 1 और 2 + 1 + 1 अपॉन स्ट्रक्चर कितनी है, 3 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3। देयरफॉर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द कार्बोनेट इज 1.33। ओके डियर, ओके नाउ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल में लेविस स्ट्रक्चर में देखा गया, CO2 मॉलिक्यूल हैज़ 2 डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, ओके हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ 121 और 110 रेस्पेक्टिवली। एक डबल बॉन्ड था और एक आपका ट्रिपल बॉन्ड था। बट एक्सपेरिमेंटली स्टडीज फाइंड दैट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड length is CO2 is 115 picometer, which is intermediate both the double bond and triple bond between carbon and oxygen. Okay dear, therefore the resonating structure of the carbon dioxide are as, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ओके, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है, यहाँ पे दोनों कोवेलेंट बॉन्ड हैं, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पर, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये आपका फॉर्मल चार्ज लगे हैं। ओके डियर, द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्ट्रक्चर। ओके, जो एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड होगी, इन तीनों का एक कोई चौथा फॉर्म होगा। ओके, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन, तो 2 + 2 अपॉन 3 स्ट्रक्चर्स हैं अपॉन 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33 आल्सो। स्टेबिलिटी ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल, ये होगा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी ये मोस्ट स्टेबल होगी इन बोथ बिटवीन द 3 स्ट्रक्चर्स। ओके, but second and third having the same stability because they have formal charge on the same electronegative element। देखिए ये ऑक्सीजन भी है, ये भी ऑक्सीजन है, और ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन पे है। एक में पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में है, एक में पॉजिटिव चार्ज राइट में है, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी कैसी होगी, सेम होगी। बट फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी वो मोस्ट स्टेबल होगी बिकॉज इट हैज़ नो चार्ज। Okay, resonance says that the species is most stable which has no charge, which is non-polar. Okay dear, thank you.